Satyamev Jayate, welcome to my YouTube channel. Students, I have created this channel to give and provide as much knowledge, as much legal knowledge as I can give and help you clear your doubts. So let's study together and grow together. Welcome again. So I have taken a short topic today. It is a very short topic, limited, and you have heard it thousands of times. So today we are going to cover this topic, Right to Information, RTI. It is the short form of Right to Information Act. So it isn't basically an act created by Parliament. So the right to know is right to live. It is said by Aruna Roy, and it is well said. This act was passed by Parliament on 15 June 2005 and enforcement date is 12 October 2005. We Indians are very late. So, our Indian constitution permits its citizens to speak and express without any fear. our हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दी है, हमें ये फंडामेंटल राइट दी है कि हम अपनी बात एक्सप्रेस कर पाए, बोल पाए, जब तक कि वो हमारे देश के या किसी और के विरुद्ध में ना हो। बाकी हमें खुले विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है, पर हम अपने विचार किस तरह बता पाएंगे अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज ही ना हो। आपका ओपिनियन मैटर ही नहीं करेगा अगर आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गवर्नमेंट के किसी काम पे क्वेश्चन उठाना है, तो आप किस तरह क्वेश्चन करोगे जब तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है। तो इसलिए आपको गवर्नमेंट ये फंडामेंटल राइट देता है कि आप जो है गवर्नमेंट से क्वेश्चंस कर सको, आप इंफॉर्मेशन ले सको गवर्नमेंट से। It is an implied fundamental right. You can write down this case if you want. It is Ashwini K. Singh case. Ashwini K. Singh's case. Date is 20 September 2020. It is most recent case. So it was established in that case that right to information is a fundamental right. This topic, right to information, will be very helpful in your life, or if you want to say in studies, speech, debates, anything. So it is a very short topic with multiple benefits. So Indian RTI Act is internationally recognized. Why? Because there is no democracy without informed citizen. There is no democracy without informed citizen, and this actually proves that our Indian constitution is actually performing its duty to democratic country. So RTI Act 2005 mandates timely response to citizens' requests for government-related information. Since every citizen pays tax, therefore he is entitled to know how the government is functioning. हम सब टैक्स भरते हैं, हमारे पेरेंट्स टैक्स भरते हैं, तो हमें अधिकार है कि गवर्नमेंट हमारा पैसा कहाँ लगा रही है, कैसा काम कर रही है, काम कर भी रही है या नहीं, अगर कोई काम कर रही है तो वो कहाँ तक पहुँचा है। This act empowers every citizen to seek any information from government, document, inspect any government document, work and record, email logs, etc., and also take certified sample of material of any government work. ठीक है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आप ले सकते हो उनसे, उसकी इंफॉर्मेशन आप निकलवा सकते हो। और कोई भी अगर जैसे आपको पता है कि कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, तो वो कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो। ओके। It promotes transparency and accountability in working of every public authority.
तो वाजिब सी बात है, जब इतनी पारदर्शिता रहेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी हम सिटीजन्स की भी और जो पब्लिक अथॉरिटी है उनकी भी, कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तो वो पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसी भूल चूक उनसे कुछ ना हो। अब कौन सबमिट कर सकता है? एनी पर्सन में सबमिट अ रिक्वेस्ट टू PIO, दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. They are appointed for this kind of work only. So to get any information related government sector, any person may submit a request. Okay, keep in mind that it can only be filed for government information. It cannot be filed on private company. Okay, तो किसी प्राइवेट कंपनी में मत भेज देना. ओके, इतना पढ़ने के बाद ऐसे मत करना, ठीक है? अब जो है आप इसको राइटिंग में आप इंफॉर्मेशन को जो है पूछ सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 10 रुपीज़ रहती है और अलग-अलग डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट रहती है। टेक इट एज़ इट रेज़ोनेट्स, ओके? आप अपने एरिया का पता कर सकते हो, अगर कुछ डिफरेंट है तो आप उस अकॉर्डिंग में दे देना, ओके? और आपको विदिन 30 डेज़ आपको इन्फॉर्मेशन जो है पहुँच जाएगी आपके पास। अब अगर विदिन 30 डेज में नहीं पहुंची तो एक क्वेश्चन उठता है कि नहीं पहुंची फिर, तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है? किसी के पास भी, किसी भी पब्लिक असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के पास आप जा सकते हो। तो अगर PIO ने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी बिना किसी वाजिब कारण के, तो उस पे फाइन लग सकता है 250 रुपीज़ टू 25,000 तक भी, जिस हिसाब का उसने मतलब गड़बड़ी की होगी। ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़रूरी रहा होगा, किसी केस के लिए आपको चाहिए होगा और ऐसा डिले हुआ लापरवाही की वजह से, तो उस तरह से उसको फाइन लगेगा, ओके? सो इतना ही टॉपिक है। देखो कितना ईज़ी है, वीडियो भी if you want I can summarize. So it is a very short topic. RTI, that is Right to Information Act, it was imposed in 12 October 2005 and was passed by Parliament on 15 June 2005. Okay, और ये आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए फाइल कर सकते हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, प्राइवेट कंपनीज में आप नहीं कर सकते। आपको एक एप्लीकेशन फ़ी लगेगी इसको भरने के लिए, फाइल करने के लिए, जो कि 10 रुपीज़ है। अलग-अलग स्टेट के लिए डिफरेंट हो सकती है। और अगर आपको 30 डेज़ के अंदर नहीं मिल रही है इन्फॉर्मेशन, तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हो किसी भी ऑफिस में, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस में। ऑफिसर्स को कम से कम 629 तक ऑफिसर्स जो है अपॉइंट होते हैं, तो आप किसी भी ऑफिस में जाके इस बारे में आप कंप्लेन कर सकते हो। तो आपको जो है उसको फाइन लगेगा PIO को, अगर उसने किसी वाजिब कारण से नहीं दी होगी या कुछ डिले में नेग्लिजेंस किया होगा। तो इसी तरह से जो है आपका RTI कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड फॉलो करिए चैनल को, अगर आप और भी लॉ रिलेटेड वीडियोस देखना